السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ اسمبلی میں پانی کے مسئلے پر تفریق پر صدمہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ماضی میں اپوزیشن اور حکومت مل کر پانی کے مسئلے پر قراردادیں منظور کرتے رہے۔ ہر ڈکٹیٹر کے دور میں سندھ کو دور رکھا گیا۔ سندھ کے پانی پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے۔ سندھ کے ساتھ بد اعتمادی کی فضا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ سندھ اپنا پانی بھی تو کم دکھاتا ہے۔ وزیر آبپاشی پنجاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا دستیاب پانی کو مناسب حکمت عملی کے ساتھ استعمال میں لانا ہے۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشقاواد نے سندھ حکومت کی مدد سے پانی چوری کا الزام عائد کر دیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا ایک سیاسی جماعت پانی پر سیاست کر کے زندہ رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سندھ اور وفاقی حکومت میں پانی کی جنگ ایوان بالا بھی پہنچ گئی۔ مولا بخش چانڈیوں کی سینٹ اجلاس میں دھواں دار تقریر، کہا ایک صوبے نہیں بلکہ وفاق کی بات کریں۔ سندھ میں پانی کا مسئلہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، غنڈہ گردی نہیں کرنے دیں گے، پاکستان کی سالمیت کی بات کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ موجودہ شرح سود 7% برقرار رہے گی۔ کورونا وبا کے باعث غیر یقینی صورتحال ہے، جنوری سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، اسٹیٹ بینک کا اعتراف۔ صنعتی ترقی کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ وزیر اعظم عمران خان کا رشکئی ترجیحی خصوصی اقتصادی زون کی تقریب سے خطاب، کہا چین نے بہت کم وقت میں صنعتی ترقی کی، بدقسمتی سے پاکستان میں صنعتی ترقی اور سرمایہ کاری پر توجہ ہی نہیں دی گئی۔ کورونا کے دوران مکمل لاک ڈاؤن نہ کرنے کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ چینی سفیر کی رشکئی منصوبے کے آغاز پر وزیر اعظم کو مبارکباد۔ تقریب سے خطاب میں کہا 2 طرفہ اقتصادی تعاون سے دونوں ممالک کی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان میں چین سے مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ نیب کے پریشر سے پورا نظام منجمد ہو گیا ہے، وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے۔ وزیر اعظم سے بات کی ہے، ہمیں اس حوالے سے قانون لانا چاہیے، ہمارے پاس نیا قانون پاس کرانے کے لیے نمبر پورے ہیں۔ چودھری نثار کا حلف کے معاملے پر وزیر داخلہ شیخ رشید کا تبصرے سے گریز، بولے چودھری نثار کا حلف جانیں اور وہ خود جانیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا راولپنڈی کا سب سے بڑا مسئلہ نانالئی قرار دے دیا۔ آج پاکستان روٹی، کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے اور عمران خان عوام سے یہ سب چھین رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی وفاقی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید، کہا وزیر اعظم صاحب ملک کی معیشت کسی کو ہٹانے یا لگانے سے بہتر نہیں ہوتی، بلکہ قائدانہ صلاحیتوں سے ملک آگے بڑھتا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 23 سال مکمل۔ پاکستان نے 23 سال قبل خطے میں طاقت کا توازن برقرار کیا تھا۔ DGISPR کا یوم تقدیر پر پیغام، کہا پاکستان نے کم از کم ایٹمی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کی حفاظت کا عزم کرتے ہیں۔ ایٹمی دھماکے کی سالگرہ پر ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، یوم تکبیر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے نام۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئے۔ صوبے میں الیکشن کا انعقاد رواں سال بھی نہیں ہو سکے گا، صوبائی حکومت نے معذرت کر لی۔ سندھ حکومت کا مردم شماری کے نتائج پر بھی تحفظات کا اظہار۔ CCI کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال نہ کرنے پر توہین عدالت کی درخواست، سپریم کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا۔ بلدیاتی ادارے بحال نہ ہونے پر قومی اسمبلی میں بھی بحث۔ احسن اقبال کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کی اتنی بے توقیری آج تک نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم اور عوام کے درمیان ٹیلی فون پر براہ راست بات چیت کی 4تھی نشست اتوار کو ہوگی۔ PTI سینیٹر فیصل جاوید کا ٹوئٹر پیغام، کہا 30 مئی کی سپہر 3 بجے وزیر اعظم عمران خان عوام کے سوالات کا جواب دیں گے۔ وزیر اعظم سے عوام کی گفتگو براہ راست نشر کی جائے گی۔ MQM لندن کا سندھ کے چھوٹے شہروں میں دہشت گردی کے لیے بنایا جانے والا بڑا نیٹ ورک بے نقاب۔ CTD کی حساس اداروں کی مدد سے کارروائی، حیدرآباد اور کراچی سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ، دستی بم اور ایمونیشن برآمد۔ CTD اور حساس ادارے کی کارروائی میں گرفتار دہشت گردوں کا اہم سیاستدانوں سے رابطوں کا انکشاف، سیاستدانوں کو بھی شامل تفتیش کیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ملک بھر سے کرونا وائرس 24 گھنٹے کے دوران مزید 67 زندگیاں نگل گیا۔ مہلک وائرس سے اموات کی تعداد 20,607 ہو گئی۔ کورونا کے مزید 2,482 کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کا عمل جاری ہے۔ بہت نقصان ہو گیا، گرمیوں کی چھٹیاں کم سے کم 2 سے 3 ہفتے کی کریں گے۔
7 जून से स्कूल खोलने जा रहे हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास का बड़ा ऐलान। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यास्मीन राशिद बोली, सहाफ़ी असातिज़ा समेत सबकी वैक्सीनेशन की जाएगी। सिंध हुकूमत का कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बावजूद पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। कराची के ताजिर हुकूमती इक़दामात पर बरहम, सड़कों पर आने की धमकी दे दी। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने कोरोना के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद की तफसील सेनेट में पेश कर दी। मजमूई तौर पर $3,697 मिलियन देने का ऐलान हुआ। पाकिस्तान को 3,098 मिलियन मौसूल हुए। मुल्तान में 3 बच्चों और उनके वालिद की पुरअसरार हलाकत। पुलिस ने बच्चों की वालदा सुमेरा बीबी को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। मुलजिमा की निशानदही पर जहरीला मवाद बरामद। आइंदा 2 दिन में तफ्तीश मुकम्मल होने का इम्कान। गुजरावाला में मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। हादसे में 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी। फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की करारदाद मंजूर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अमन मिशन के लिए 3 रोज़ा दौरे पर इराक रवाना हो गए। इसराइल फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। वफाकी वज़रा शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शीरी मज़ारी बोली, इसराइल को जारियत से रोकने के लिए आलमी बरादरी इक़दामात करे। फवाद चौधरी कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा ने फलस्तीन का मुकदमा UN जनरल असेंबली में लड़ा। मकबूजा वादी में काबिज फौज का ऑपरेशन जारी। जिला इस्लामाबाद से 2 भाइयों समेत 6 नौजवान जेर हिरासत। नामालूम मुकाम मुंतकिल। इलाके का मुहासरा जारी। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद। 11 मई को इसी इलाके में काबिज फौज ने 3 नौजवानों को शहीद भी किया था। और PSL की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर। कराची के बाद मेला अबूधाबी में सजेगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का करंटीना शुरू। सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों को वीज़ों का इंतजार। मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान कल तक मुतवक्के। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। आपने पाकिस्तानी करेंसी नोट तो देखा होगा, लेकिन इस नोट को इस शक्ल में आने में एक लंबी कहानी है। आइए आज हम आपको भी इसकी तारीख बयान करें। 1 अप्रैल 1948 ही को हुकूमत पाकिस्तान ने 1 पाई, आधा आना, 2 आना, पाव रुपया, निस्फ रुपया और 1 रुपया के 7 सिक्कों का एक सेट जारी किया। और इस वक्त के वजीर खजाना गुलाम मोहम्मद ने एक खूबसूरत तकरीब में ये सेट बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत में पेश किया। पाकिस्तान में मालियाती निजाम का बाकायदा आगाज जुलाई 1948 में कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह से हुआ। इस इफ्तिताह के बाद पाकिस्तान में नई करेंसी नोटों की तैयारी और पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के कयाम के लिए कोशिशें तेज कर दी गयी। 1 अक्टूबर 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के करेंसी नोट जारी किए। ये नोट बरतानिया की फर्म मैसर्स डी लार्वा एंड कंपनी में ताबे किए गए थे। 1 मार्च 1949 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक और 2 रुपए मालियत के 2 करेंसी नोट जारी किए, जबकि 2 रुपए पर पहली मर्तबा स्टेट बैंक के गवर्नर जाहिद हुसैन के दस्तखत शाये हुए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1 सितंबर 1957 को 5 रुपए और 10 रुपए के नोट जारी किए गए। स्टेट बैंक ने 24 दिसंबर 1957 को 100 रुपए मालियत का नोट जारी किया, जिस पर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर प्रिंट थी। इसकी दूसरी तरफ बादशाही मस्जिद लाहौर की तस्वीर थी। पाकिस्तान में पहली बार 1 जनवरी 1961 को अशारी सिक्के जारी किए गए, जिनकी वजह से 1 पाई, पैसा, 1 कन्नी, 2 कन्नी, 54 और 98 की कानूनी हैसियत खत्म करके रफ्ता रफ्ता 1, 2, 5, 25, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए का सिक्का राइज हुआ। 12 जून 1964 को स्टेट बैंक ने 50 रुपए मालियत का करेंसी नोट जारी किया। इस नोट पर गवर्नर स्टेट बैंक शुजात अली के दस्तखत थे। 7 जून 1971 को पाकिस्तान की वजारत खजाना ने ऐलान किया कि चंद नागुज़िर वजूहात की बिना पर 100 और 500 रुपए के नोटों को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। इसलिए अवाम को 100 और 500 के नोटों को बैंकों और मुकर्ररा करदा इदारों में जमा करवा कर उन्हीं की रसीद ले लें, ताकि बाद में उनके मुतबादिल दूसरे नोट हासिल कर सकें। 20 जनवरी 1982 को हुकूमत पाकिस्तान ने 1 रुपया मालियत का और बाद अज़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 5, 10, 50 और 100 रुपए मालियत के 4 नए करेंसी नोट जारी किए, जिनकी एक खास बात तो ये थी कि इस पर बंगाली जुबान की इबारतें हज़फ कर दी गई थीं, और दूसरी ये कि उनकी पुश्त पर उर्दू में रिज़्क़ हलाल आइन इबादत है की इबारत ताबे थी। 1 अप्रैल 1986 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 500 रुपए मालियत का नया करेंसी नोट जारी कर दिया।
18 जुलाई 1987 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1000 रुपए का करेंसी नोट जारी किया, जो मालियत के एतबार से इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा करेंसी नोट था। 22 मार्च 1997 को हुकूमत ने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात के हवाले से 50 रुपए मालियत का एक खुसूसी सिक्का जारी किया। इस सिक्के की पुष्ट पर पाकिस्तान का परचम बना था। 26 मई 2006 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर डॉक्टर शमशाद अख्तर ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़े करेंसी नोट, जो कि 5000 मालियत का था, के इजरा का ऐलान किया। इस रोज 10 रुपए का नया नोट भी जारी किया गया, जिसका रंग सब्ज, जबकि इसकी पुष्ट पर बाब खैबर की तस्वीर शाये की गई थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 2009 को अवामी जमहूरिया चीन के 60वें जश्न आजादी के मौके पर 10 रुपए मालियत का एक यादगार सिक्का जारी किया गया। इसकी पुष्ट पर पाकिस्तान और चीन के परचमों की तस्वीरों के साथ 60 साल जश्न आजादी, अवामी जमहूरिया चीन और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद की इबारत दर्ज थी। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 23 साल हो गए। आज मुल्क भर में यौम तकबीर मनाया गया। एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। बलूचिस्तान के पहाड़ों से पाकिस्तान की अजमत का ऐलान हुआ तो दुश्मन के अजाइम हमसाया मुल्क भारत ने 11 मई 1998 को 3 एटमी धमाके करके खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया था। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के जिला चागी के इलाके रासकोह में 5 कामयाब एटमी धमाके करके दुश्मन के अजाइम को खाक में मिला दिया। एटमी ताकत बनने के बाद हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद है। इस दिन पाकिस्तान के एटमी ताकत के हामिल ताकतवर ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एजाज से कम नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फख्र है। बलूचिस्तान के वजीर दाखिला का कहना है कि 28 मई का दिन अहले वतन के लिए ईद जैसा है और सबको अपनी फौज की सलाहियतों पर एतमाद है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने यौम तकबीर पर कौम, क़यादत और इदारों को मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ ने इस दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ ने ज़ाती मुफाद के बजाय कौमी मुफाद को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि जौहरी धमाके कौमी सलामती, बका और खुदमुख्तारी के लिए ज़रूरी थे। वाज़ेह रहे कि 23 साल कबल 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके करके एक खुदमुख्तार कौम होने का ऐलान किया और मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, जिसमें इंसदाद पोलियो के लिए पाकिस्तान के अज़्म और कोरोना के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक बिल गेट्स ने पोलियो के सदेबाब की मुहिम में पाक फौज के ताउन को सराहा और आर्मी चीफ ने दुनिया से इंसदाद पोलियो के लिए बिल गेट्स और इनकी फाउंडेशन की काविशों की तारीफ की। आर्मी चीफ का कहना था कि इंसदाद पोलियो कौमी मकसद और कौमी कोशिश है। पाकिस्तान में जब कोई एक भी बच्चा पोलियो से मुतासर नहीं होगा तो इसे कामयाबी कहेंगे। उनका मजीद कहना था कि इंसदाद पोलियो के लिए पोलियो टीम्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत सबकी कोशिशें कार फरमा है। मुल्क भर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इरसा के मुताबिक पानी का शॉर्टफॉल बढ़कर 32% पर आ गया। सूबों के पानी के हिस्सों में भी कटौती का फैसला कर लिया गया। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा का अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पानी बहरान का जायजा लिया गया। इजलास के बाद जारी एलामिये में कहा गया पानी का शॉर्टफॉल बढ़कर 32% हो गया है, जिसके बाद सूबों के पानी के हिस्सों में कटौती का फैसला कर लिया गया। पंजाब का पानी का हिस्सा 7000 क्यूसिक कम कर दिया गया, जबकि सिंध के पानी के हिस्से में 10,000 क्यूसिक कमी की गई। एलामिये के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से मुस्तस्ना करार दिया गया। दरियाई सिंध के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत बढ़कर 26 डिग्री पर आ गया, जिसके बाद आइंदा 72 घंटों में दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान है। इरसा हुक्काम के मुताबिक आज पंजाब को 83,000 और सिंध को 74,000 क्यूसिक पानी फराहम किया जा रहा है। सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और महकमा दाखिला सिंध ने डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी या इत्तला देने पर मजमूई तौर पर 2 करोड़ 60 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 27 खतरनाक मुल्जिमान सिंध के कच्चे के इलाकों में जराइम की बड़ी वारदातों में मुलव्विस हैं। अगवा, बराए तावान, कत्ल और डकैतियों में मुलव्विस मुल्जिमान की फहरिस्त भी जारी की गई है। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक बदनाम जमाना मुल्जिमान वाजिद कंदरानी, बदर उर्फ बदरू डहानी के सर की कीमत 10 लाख रुपए, वाशु उर्फ सोहरिया के सर की कीमत 15 लाख मुकर्रर की गई है। अली सब्जुई के सर की कीमत 10 लाख और बेलू बंगाली की गिरफ्तारी पर 30 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन का सिंध के छोटे शहरों में दहशतगर्दी के लिए बनाया जाने वाला बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। CTD की हसास इदारों की मदद से अहम कार्रवाई। हैदराबाद और कराची से ताल्लुक रखने वाले 3 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए।
دوران تفتیش ملزمان نے بعض اہم سیاسی شخصیات سے رابطوں کا انکشاف کر ڈالا۔ ذرائع کے مطابق انکشافات کی روشنی میں اہم سیاسی شخصیات سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ لندن سندھ میں بدامنی کے لیے پھر سرگرم۔ حیدرآباد سمیت سندھ کے دوسرے شہروں میں مخالفین کے قتل اور دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ سی ٹی ڈی نے حیدرآباد اور کراچی سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گرد گرفتار کر کے اسلحہ، دستی بم اور ایمونیشن برآمد کر لیا۔ کارروائی میں حساس اداروں کی معاونت حاصل تھی۔ ذرائع کے مطابق گرفتار ملزم نعیم احمد متحدہ قومی موومنٹ لندن کی سندھ آرگنائزنگ کمیٹی کا جوائنٹ انچارج ہے۔ ملزم نے بیرون ملک سے اعلیٰ قیادت کے حکم پر حیدرآباد میں مخالفین کو قتل کرنے اور دہشت گردی پھیلانے کے لیے 6 رکنی گروہ تشکیل دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس گروہ میں رو کے تربیت یافتہ دہشت گرد شامل ہیں۔ ملزم عمران حیدرآباد میں پرتشدد کارروائیوں، جلاؤ، گھیراؤ اور قتل کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ وہ متعدد کیسز میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ گرفتار ملزم علیم الدین APMSO کراچی کا سینئر رکن اور رو کا تربیت یافتہ ہے۔ ذرائع کے مطابق تینوں ملزمان نے انکشاف کیا کہ انہیں جنوبی افریقہ سے ہدایات ملی تھیں ایک نیا گروہ بنا کر حیدرآباد سمیت سندھ کے دوسرے شہروں میں مخالفین کو قتل اور دہشت گردی کی وارداتیں کی جائیں۔ ذرائع کے مطابق ملزمان نے بعض اہم سیاسی شخصیات سے بھی رابطوں کا انکشاف کیا ہے۔ انکشافات کی روشنی میں اہم سیاسی شخصیات سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ پاکستان میں مزید 2507 افراد میں مہلک وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 9,12,917 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک بھر میں آج مزید 2507 افراد میں مہلک وائرس کی تشخیص ہوئی، جن میں سندھ میں 1099، اسلام آباد میں 117، گلگت بلتستان میں 12، پنجاب میں 758، خیبر پختونخوا میں 384، بلوچستان میں 85، جبکہ آزاد کشمیر میں 52 کرونا وائرس کے کیسز تصدیق ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد اس وقت سندھ میں 3,14,141 ہے، بلوچستان میں 24,908، خیبر پختونخوا میں 1,31,411، اسلام آباد میں 80,779، گلگت بلتستان میں 5,545، پنجاب میں 3,37,073 اور آزاد کشمیر میں 19,060 مریض موجود ہیں۔ یاد رہے اس سے قبل ترجمان محکمہ صحت سندھ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سندھ بھر میں 1,099 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کے بعد سندھ بھر میں کرونا متاثرین کی تعداد 3,14,141 ہو گئی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی کے مختلف سیکٹرز، حیدری، نارتھ ناظم آباد، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل بے ایریا کے مختلف بلاکس میں رات گئے بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی کے الیکٹرک کی جانب سے کراچی کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ لیاقت آباد C1 اور B1 ایریا میں رات 11 بجے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی کے مختلف سیکٹرز، حیدری، نارتھ ناظم آباد، شاہ فیصل کالونی، گلستان جوہر، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلاکس میں رات گئے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ PIB کالونی، لانڈی، 36B، AB سینا لائن، جیکب لائن، کھارادار اور ماڈل کالونی شیٹ 7 میں بھی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ لیاقت آباد میں گیس لیکیج دھماکے میں زخمی مزید 2 بچے دوران علاج دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ لیاقت آباد نمبر 9 میں گیس لیکیج کے دھماکے سے گھر کی چھت اور چھجا گرنے کے واقعے میں 2 بچے دوران علاج چل بسے، جن میں 6 سالہ زین ولد فرحان اور 2 سالہ زینب دختر عمران شامل ہیں۔ گزشتہ رات واقعے میں 40 سالہ آصف وسیم اور 6 سالہ عبدالہادی جاں بحق ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش کے بعد دھماکہ ایئر کنڈیشن کے کمپریسر میں ہوا تھا۔ ایئر کنڈیشن کی وائرنگ کمزور ہونے کی وجہ سے زوردار دھماکہ ہوا، جس کی وجہ سے 5ویں منزل کی چھت اور چھجا گر گیا۔ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں منظم زیادتیوں کی کھلی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ OIC کی جانب سے قرارداد پاکستان نے پیش کی، جہاں 47 رکنی کونسل میں قرارداد 24 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ قرارداد کے تحت مشرق وسطیٰ میں اشروں سے جاری تنازع کی بنیادی وجوہات بھی سامنے لائی جائیں گی۔ دوسری جانب اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کل ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں OIC کو کامیابی ہوئی ہے۔ OIC میں پاکستان نے قرارداد پیش کی، جو ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ نیتن یاہو کے بیان سے لگتا ہے وہ خوف میں مبتلا ہے۔ فلسطین میں مظالم کی تحقیقات ہوتی ہیں تو نیتن یاہو بے نقاب ہو جائیں گے۔ شام کا صدارتی
शुरुआती मार्का एक बार फिर बशार अल असद ने सर कर लिया। बशार अल असद अगले 7 साल के लिए शाम के सदर मुंतखब हो गए। बशार अल असद ने 95% वोट हासिल करके नई तारीख रकम कर दी है। 1,35,40,300 वोट बशार अल असद के नाम रहे। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क की सड़कों पर जश्न का समा। सैकड़ों अफराद शाम के कौमी परचम लिए दमिश्क की सड़कों पर निकल आए और यही सूरत हाल दीगर शामी शहरों की है, जहां दमिश्क समेत शाम के मुख्तलिफ शहरों में लाखों अफराद जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने एक मुश्तरका बयान में शाम में सदारती इंतखाबात के अमल की मज़म्मत की है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 2254 के दायरेकार से बाहर रहकर सदारती इंतखाबात का इनेकाद काबिल मज़म्मत है। उन्होंने जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी आज़ाद और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी जानिब बशार अल असद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कोई अखबारी इंटरव्यू नहीं दिया। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पाकिस्तान भर में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 950 रुपए कमी के बाद 1,11,800 रुपए हो गई है। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत 950 रुपए कमी के बाद 1,11,800 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 815 रुपए कमी के बाद 95,850 रुपए हो गई है। कीमतों में कमी के नतीजे में कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर की सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत 950 कमी के बाद 1,11,800 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 815 रुपए कमी के बाद 95,850 रुपए हो गई है। आलमी सराफा मार्केट में सोना $12 कमी से $1,960 फी औंस का हो गया है। वफाकी दायरा शुमारियात ने समाजी और मयारात ज़िंदगी से मुतालिक सर्वे में पाकिस्तान में 38% घरानों के मुआशी हालात को पहले से ज्यादा बदतर करार दे दिया। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 12% घरानों ने घरेलू माशी हालात को, 26% ने पहले से बदतर और 46% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले जैसा करार दिया। सिंध में सबसे ज्यादा 29% घरानों ने घरेलू माशी हालात को बदतर करार दिया। दूसरे नंबर पर KP में 27%, पंजाब में 25% और बलूचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू माशी हालात पहले से बदतर कहा। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में काश्तकारों के लिए वेयर हाउस फाइनेंस स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से वेयर हाउस फाइनेंसिंग से काश्तकारों के लिए वेयर हाउस फाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ कराई जा रही है। किसान फसल अपनी तहसील के वेयर हाउस में रखवा कर इसकी रसीद हासिल करेगा और इस रसीद के बदले बैंक से कर्ज हासिल कर सकेगा। इस स्कीम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तमाम तहसीलों जहाँ वेयर हाउसेस की सहूलत मौजूद नहीं, वहाँ भी वेयर हाउस बनाए जाएंगे। साबिक चेयरमैन काटी और चेयरमैन MY ग्रुप फरहानुर रहमान और साबिक सीनियर नायब सदर काटी और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए पोर्ट एंड शिपिंग काटी और चीफ तर्जुमान KBG फराजुर रहमान ने जुबैर तुफैल को UBG का सदर, जफर बख्तावरी को सेक्रेटरी जनरल और डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग को सेक्रेटरी इत्तलात बनने पर मुबारकबाद पेश की है। फरहानुर रहमान ने कहा है कि जुबैर तुफैल को FPCCI का वसी तजुर्बा है और वो FPCCI के सदर भी मुंतखब हो चुके हैं। उन्होंने तवील अरसे तक ताजिर बिरादरी की खिदमत की है। फराजुर रहमान ने इस्लामाबाद चैम्बर के साबिक सदर और FPCCI के साबिक नायब सदर जफर बख्तावरी को सेक्रेटरी जनरल मुंतखब करने के फैसले की तारीफ की और कहा कि उनका इंतखाब UBG के लिए मजीद कामयाबी की जमानत होगा। UBG ताजिर बिरादरी में सबसे आगे रहेगी और मौसर किरदार अदा करेगी। फरहानुर रहमान ने साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग को UBG इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुकर्रर करने के फैसले को भी सराहा और इस एतमाद का इजहार किया कि इख्तियार बेग भी UBG और ताजिर बिरादरी के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। दुनिया की महंगी तरीन और पुरताइश कारें बनाने वाली अमरीकी कंपनी रोल्स रॉयस ने 4 अरब रुपए की दुनिया की सबसे महंगी कार तैयार की है। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक $20 मिलियन कीमत वाली बूट टेल कार को अमेरिका के एक दौलतमंद और शादाब जोड़े ने खुसूसी फरमाइश पर तैयार करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी के नाकाबिले यकीन अगबी हिस्से में एक डिनर सेट लगा हुआ है, जिसमें कुर्सियां लगी हैं और यहाँ तक कि धूप और बारिश से बचने के लिए रोलर छतरी भी लगी हुई है, जिसके नीचे बैठकर खाना भी खाया जा सकता है। रोल्स रॉयस का कहना है कि इस मुनफरिद कार के डिजाइन और तैयारी में 4 साल लग गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक $20 मिलियन की कीमत वाली इस गाड़ी के बदले रोल्स रॉयस ही की परचम बरदार 40 फैंटम लेमोजीन कारें खरीदी जा सकती हैं, जिनकी इनफरादी कीमत तकरीबन 32 करोड़ से जायद है। ये कार रोल्स रॉयस की पिछली 2 सबसे महंगी नई कारों और स्वेपटेल जिसकी कीमत 20 अरब रुपए है और हाइपर का बुगाटी जिसकी कीमत 22 अरब रुपए है से भी दुगनी है। इस नई कार की जमीन से ऊंचाई भी नुमाया तौर पर पिछली कारों की निस्बत काफी ज्यादा है। इस कार का इंजन और दीगर सामान मौजूद फैंटम लेमोजीन कार के डिजाइन की तरह है। ताहम गाड़ी के ऊपर की हर चीजें हाथ से तैयार करदा सबसे बड़े पैनल्स, डैशबोर्ड्स की घड़ी समेत दीगर सामान को मुकम्मल तौर पर नया डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रोल्स रॉयस की नई गाड़ी का डिजाइन बिल्कुल नया है और ये कंपनी की तारीख की सबसे कामयाब तरीन कार है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा जब अपने उरूज पर थी तो रोल्स रॉयस ने अपनी पैदावार को चंद हफ्तों के लिए बंद कर दिया था और दुनिया भर में इनके डीलरों की भी कारोबार बंद हो गए थे। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। चीन की तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन के कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पाने की अमरीकी जर्नल ने भी तस्दीक कर दी। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने साइनोफार्म वैक्सीन के असरात के मुशाहिदात पर मबनी ताज़ा तरीन तहकीक के नताइज जारी कर दिए। जर्नल में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म कोरोना पर 72 से 78% तक मौसर साबित हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 40,832 रजाकारों पर मुश्तमिल तहकीक मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र और उर्दन में की गई। तहकीक के मुताबिक दूसरी खुराक मिलने के 2 हफ्ते बाद जायजे में कोई भी रजाकार शदीद इन्फेक्शन में मुब्तला नहीं हुआ। इससे कबल रवा माह ही आलमी इदारा सेहत WHO ने भी साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दी थी। ख्याल रहे कि साइनोफार्म वैक्सीन पाकिस्तान समेत दीगर मुमालिक में भी शहरियों को लगाई जा रही हैं। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने साइनोफार्म वैक्सीन के असरात के मुशाहिदात पर मबनी ताज़ा तरीन तहकीक के नताइज जारी कर दिए हैं। चीन की तैयार करदा साइनोफार्म वैक्सीन के कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पाने की अमरीकी जर्नल ने भी तस्दीक कर दी है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा किंजा हाशमी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। अदाकारा किंजा हाशमी ने तस्वीर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें वो आया सोफिया के बाहर मौजूद हैं। अदाकारा किंजा हाशमी की तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो सियाह रंग का लिबास जेबतन की हुई हैं, जो इनकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा है। अदाकारा की जानिब से इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जाने वाली किंजा हाशमी की तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। इससे कबल किंजा हाशमी की तुर्की में सैर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। अदाकारा किंजा हाशमी ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिसमें आया सूफिया के बाहर मौजूद थी। तस्वीर में देखा जा सकता है किंजा हाशमी कभी तुर्की के डेल्टा होटल में है तो कभी इस्तांबुल के साहिल पर मौजूद है। किंजा हाशमी ने अपने दौरा तुर्की के सफर को यादगार करार दिया था और अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि यहाँ आकर जिंदगी का मजा दोबाला हो गया है। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने एक शेर मद्दाहों के साथ शेयर किया, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। मोहसिन अब्बास का शुमार इन बासलाहियत अदाकारों में होता है जो न सिर्फ अदाकारी बल्कि दीगर खुसूसियात के भी हामिल होते हैं। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर खुद के लिखे गए शेर पोस्ट करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर अदाकार ने एक शेर पोस्ट किया जिसके बोल कुछ यूं थे: कुछ इसलिए मेहनत करते हैं कि शोहरत कमा सकें और हम इसलिए कमाते हैं कि जिम्मेदारियां निभा सकें। मोहसिन अब्बास के इस शेर को मुतादिद मद्दाहों ने शेयर किया, जबकि कमेंट सेक्शन में अदाकार के लिए बहुत सारी दुआएं भी की गईं। इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली कई अदाकाराओं ने शादी के बाद इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया और चंद अदाकाराओं ने खामोशी से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली। अदाकारा सनम बलोच सोशल मीडिया पर ज्यादा मुतहरिक नहीं आती और यही वजह है कि सारिफीन उनसे मुताल्लिक खबरें नहीं जान पाते। इत्तलात के मुताबिक सनम भी शादी के बाद बैरून मुल्क मुकीम थी। ताहम हाल ही में वायरल होने वाली वीडियो ने उनके मद्दाहों को खुशी की नवीद सुनाई है। मंशा पाशा की जानिब से इंस्टाग्राम अकाउंट पर वर्जिश की वीडियो शेयर की गई, जिसमें उन समेत सनम बलोच और अदाकारा अरीबा हबीब दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखकर सनम के मद्दाह काफी खुश हुए और उन्हें उम्मीद है कि शायद वो जल्द ही अदाकारा को दोबारा स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसके अलावा मंशा पाशा ने स्टोरी भी शेयर की, जिसमें तीनों अदाकाराएं आपस में बगलगीर हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के लिए 25 अफराद को ताहाल वीजे न मिलने की तस्दीक कर दी। PCB का कहना है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद समेत 25 लोगों को वीजा नहीं मिल सका। फास्ट बॉलर मोहम्मद हुसनैन और इमरान खान को भी वीजा नहीं मिल सका है, जबकि PCB मीडिया डिपार्टमेंट के अफसर हम्माद हमीद भी वीजे के मुंतजिर है। PCB के मुताबिक जिन 25 लोगों को वीजे नहीं मिले उनका मामला हल किया जा रहा है। तमाम अफराद फिलहाल बायो सिक्योर बबल में ही रहेंगे। वीजों के इजरा के बाद तमाम अफराद को अलहदा चार्टर्ड फ्लाइट से अबू धाबी पहुंचाया जाएगा। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। शहर में आज तेज हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 29.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 66% है। जुनूब मगरिब में 21 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।